Let's get you the latest now from Shaheen Bagh, where this morning bulldozers arrived for the anti-encroachment drive. Remember, the Delhi MCD, South Delhi MCD, has been carrying out this anti-encroachment drive in 10 localities, and Shaheen Bagh was on the list. They had wanted to carry this out on Friday. However, the police could not give them adequate security then. But today, they arrived there with the bulldozers, with police presence, with the media as well. So it was quite chaotic for a few hours, as we saw a lot of the locals out there, the media was there, the police was out there in large numbers, and the bulldozers, of course, that have become a symbol of this action against various, which we've seen across the country in various states, bulldozers being used in particular localities, and even becoming an election symbol in a sense. During the UP elections, in many of Yogi Adityanath's rallies, we saw bulldozers being brought there. But however, what happened here was that the MCD surveyed the area, and it seems all they could find was one scaffolding outside of a shop, and that was brought down by the shopkeepers themselves. Because just to understand, this is a very broad road here. It's a road between Delhi to Noida, and if you see where the market is, there are these big shops. They're all big showrooms and big brands over there, and finally, this scaffolding that you see on your screens, this was brought down by the shopkeepers themselves, because the bulldozers starting heading towards that. So the local MLA Amanatullah Khan also arrived here, and he spoke to the police, he spoke to the MCD, and he said he said he's already carried out a drive to remove any sort of illegal encroachments like carts or any sort of stalls that were put up, but he says nothing else is an illegal encroachment here, and the bulldozers then turned back. NDTV's Sanket is there in Shaheen Bagh, and he spoke to a couple of the locals to understand the situation there and what exactly happened this morning when MCD bulldozers had to return from Shaheen Bagh. So I have with me some locals. आपका शुभ नाम? अलीम। आप यहीं रहते हैं? जी। ये बुलडोजर आया और उसको बस ये बल्लियां दिखी यहाँ पर जो गैर कानूनी थी। जी, बल्लियाँ क्या आप अपना मकान में भी सफेदी कराएंगे या बोर्ड लगाएंगे तो बगैर बल्ली के थोड़ी आप हवा में थोड़ी उड़ेंगे। हाँ। हवा में उड़ के तो हो नहीं सकता जब तक बल्ली बांस वगैरह या राड वगैरह कुछ नहीं लगेगा, तो आप उसमें मरम्मत उसकी करा नहीं सकते या बोर्ड लगा नहीं सकते। बस ये है। और अगर कहीं बुलडोजर अगर चल भी रहा है तो इतनी मीडिया वाले वहाँ थोड़ी जाते हैं। इस शाहीन बाग को इशू बना के ये दिखाया जा रहा है कि शाहीन बाग में मतलब जो है बुलडोजर चलाया जा रहा है, इस तरीके की बात है। तो मेरा कहने मतलब अगर अवैध है तो हर जगह भी चलाओ आप, और चलना चाहिए, लेकिन कोई अवैध नहीं है। बुलडोजर 3 घंटा खड़े खड़े यहाँ से चला भी गया। तो शाहीन बाग में बुलडोजर को ये वो बिल्डिंग थी ना जिसमें बल्लियां लगी हुई थी? जी जी जी। हाँ, तो ये क्या इन्होंने क्या बोला कि ये क्यों लगाए? पुताई कर रहे थे? ये पुताई नहीं कर रहे थे, बोर्ड की मरम्मत करा दे। अगर इसके अंदर अगर शोरूम वगैरह है तो अपना लाइट वगैरह उसमें प्रचार करने के लिए कुछ ना कुछ तो बोर्ड पे लगाए जाते हैं। बस वही काम चल रहा था और कोई बात नहीं। उसमें काम थोड़ी है, अपने घर की मरम्मत सफेदी भी कराएंगे तो कोई बात। तो बुलडोजर को और क्या मिला यहाँ पर? बुलडोजर कुछ नहीं मिला, पब्लिक मिली, मीडिया मिली, पुलिस मिली, बुलडोजर गया घर अपने। पब्लिक मिली, मीडिया मिली और पुलिस वाले मिले और गए अपने घर। और डीआरपी नहीं मिली। और क्या मिला? आइए आइए आइए। डीआरपी नहीं मिली, अच्छा, कुछ नहीं मिला। पब्लिक ये सब जान रही है। रोटी का मुद्दा है, कोई उठाने वाले आवाज़ है नहीं। पेट में आग लगी, आपके घर 5,000, 6,000, 7,000 रुपया हर माह का खर्चा बढ़ चुका है। आप आवाज़ उठाएंगे तो जेल में डाल दिए जाएंगे, हम आवाज़ उठाएंगे जेल में डाल दिए जाएंगे। मीडिया वालों को लंगा करके उसमें जेल में लंगा किया जाएगा। और जो ऊंचे पोस्ट पे जो मीडिया पैसा गवर्नमेंट की तरफ से खाने वाली या कुछ भी है तो उसकी बाबा आए, उसके आवाज़ उठाने वाला कोई भी नहीं है। कोई कुछ आप फालतू बोल दे तो आप गुनहगार हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम बदरुद्दीन है, मैं MIM से यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष हूँ। देखिए, ये जो हटाने आए थे इंक्रोचमेंट, एक सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर पॉलिटिक्स का सिंबलिज्म करने आए थे। बुलडोजर आता है, मेन रोड पे खड़ा रहता है, भीड़ आती है, सैकड़ों मीडिया चैनल है, एक बाढ़ को बता रहे हैं कि इलीगल स्ट्रक्चर है। इस बाढ़ इलीगल स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल, उस पर हंगामा काटा इन्होंने कहा कि जी हमारी बाढ़ है, हमने बोर्ड लगाने के लिए लगाया था, खुद हटा लूँगा, खुद हटा लिया और बुलडोजर चला गया। तो कहीं ना कहीं ये मीडिया विजुअल थ्रू आउट इंडिया भेजने के लिए बीजेपी जो कम्युनल पॉलिटिक्स कर रही है कि जब शाहीन बाग जो मुस्लिम डोमिनेंट एरिया है वहाँ पे हम लेके गए बुलडोजर और वहाँ पे इनको टाइट कर दिया।
जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू उन्होंने एक साइकी, पब्लिक साइकी क्रिएट की है और जो नैरेटिव सेट किया उसमें यह है कि जी मुसलमानों को अगर हम टाइट रखेंगे तो हमारी पॉलिटिक्स टाइट रहेगी, वही करने आए थे। ये कोई इंक्रोचमेंट नहीं हटाने वाले, कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मीडिया में फोटो भेजने के लिए एक मीडिया मैसेजिंग है और मैं यही करने आया तो कुछ नहीं किया। आप अगर यहाँ स्टार्टिंग से रहे होंगे, इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्स खड़ी हुई, पुलिस खड़ी, उसको धूप में परेशान कर दिया, जनता को परेशान कर दिया और आके उन्होंने कहा ये हम बाढ़ हटा रहे हैं। उनसे पूछे, कोई इंजीनियर से पूछे एमसीडी के कि क्या ये बाढ़ जो है स्ट्रक्चर है और क्या ये इलीगल स्ट्रक्चर है। भाई अगर आपको हटाना है तो आप जो इलीगल स्ट्रक्चर होंगे बहुत सारे उनको नोटिस दीजिए, वहाँ पे जाइए, आप लीगली तौर पे हटाइए, फिर वहाँ कोई अपोज करता है तो बताइए। हम लोग खुद ही बहुत सारे इंक्रोचमेंट से परेशान हैं। तो मेरा कहना ये है, ये राड वगैरह पब्लिक ने अपने हाथ से हटाया, कोई बुलडोजर नहीं हटाया। ये राड वगैरह जितना सब अपने हाथ से हटा के अंदर रख रही है, आपके सामने भी है। अगर किसी ने बुलडोजर चलाया है या कुछ भी है तो इतनी मीडिया सुबह से लगी है कुछ भी दिखा दे। ये मीडिया में दिखाने के लिए, शाहीन बाग इशू बनाने के लिए ये ऐसे बनाया गया, सिंबोलिज्म है और कुछ और कोई कहना है शाहीन बाग को बदनाम करने के लिए। हाँ, जो है नाम वाला वही बदनाम है। लेकिन ये पिछले 8 दिन से जो ये माहौल क्रिएट किया जा रहा था कि ओखला शाहीन बाग में इंक्रोचमेंट है, वो तोड़ा जाएगा, वो हटाया जाएगा। यहाँ पे मुझे आप वहाँ से लेके और जहाँ शोरूम है एक दिखा दिए कि कहीं पे उन्होंने बिल्डोजर टच भी किया हो, सिर्फ और सिर्फ माहौल ख़राब करने के लिए। अंजना ओम कश्यप जहांगीरपुरी में जाके उस बिल्डोजर पर चढ़ जाती, सिर्फ मुसलमानों के लिए, सिर्फ माहौल ख़राब करना। जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनके दिमागों में सिर्फ हिंदू मुस्लिम भरना और देश को माहौल, देश का जो नौजवान है उसको भ्रमित करने का काम है इन लोगों का, और ये वही में कामयाब भी हो रहे हैं। और जो आजकल आप देख रहे हैं वीडियो मुसलसल के, वहाँ पे उसको मार लिया, कहीं से मार लिया, ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह पे 100 में एक आध आदमी ख़राब होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश का माहौल ख़राब है, देश का माहौल ख़राब नहीं है। देश का माहौल ख़राब करने की पूरी कोशिश की जा रही है। हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनके दिमागों में हिंदू मुस्लिम की बातें डाली जा रही हैं, जो पिछले 15 सालों से डाली जा रही हैं, और इसका नतीजा आने वाले 15 साल में दिखेगा क्या हो रहा है। बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा जो देश का गंगा जमनी तहजीब थी, जो हमारे पहले थे, पहले भी तो हम लोग सब साथ मिलकर रहते थे। अब और हम कब अलग हैं, मगर अब जो है इसको छोटी छोटी चीज़ों को ये क्रिमिनलाइज करके दिखाते हैं, हिंदू मुस्लिम करके दिखाते जैसे कि आपने सुना यहाँ पर स्थानीय लोगों का, और मैं आजम से कहूँगा कि वो आगे आएँ, स्थानीय लोगों का ये बताना है कि ले दे के अतिक्रमण हटाने के नाम पर ये यहाँ पर ये बल्लियाँ लगी हुई थी, और बल्लियाँ इसलिए लगी थी ताकि कुछ रंगाई पुताई हो जाए, सफाई हो जाए, सफ़ेदी हो जाए, पोस्टर बैनर लग जाए। और इससे पहले कि बुलडोज़र इसको उतारता, यहाँ पर स्थानीय लोगों ने बोला कि आप ये कष्ट क्यों उठा रहे हैं, ये जहमत मत उठाइए, हम ही कर देते हैं। ये सारी स्कैफोल्डिंग उतर गई, सारी बल्लियाँ उतर के अब अंदर जा रही। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो यही है कि क्या इस देश का सारा पैसा, सारा समय इन बल्लियों को दिखाने में जाएगा? क्या ये बल्लियाँ इस देश की सबसे बड़ी दिक्कत है? शाहीन बाग की ये बल्ली इस देश की सबसे बड़ी मुसीबत हो गई। इतनी बड़ी मुसीबत है तो लीजिए साहब हटा लिया लोगों ने। कैमरामैन आजम के साथ संकेत उपाध्याय, एनडीटीवी।